متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت سے محروم رکھنا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کو نظر انداز کرنا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ عالمی مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی حل درکار ہے۔ یک طرفہ اقدامات بے امنی اور عالمی انتشار کا باعث بنیں گے۔ انصاف، عالمی قوانین اور روایات کو پامال کیا جاتا ہے۔ کچھ عناصر طاقت کے بل بوتے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج 4 روزہ دورے پر چین کے لیے روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کے علاوہ دیگر ممالک کے سربراہان، IMF کی سربراہ اور اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان 4 روزہ دورے پر آج چین پہنچیں گے، جہاں پر وہ IMF کے MD اور عالمی بینک کے CEO سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں قرض کے حوالے سے معاملات طے پانے کا امکان ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم بیجنگ میں بیلٹ اینڈ روڈ فورم کی افتتاحی تقریب کے دوسرے سیشن سے خطاب کریں گے۔ عمران خان کی چینی صدر شی جن پنگ سے 1-on-1 ملاقات 28 اپریل کو ہوگی۔ وہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ایجنڈے برائے 2030 کے سیشن میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی ملائیشیا، مصر، بیلاروس اور ایتھوپیا سمیت کئی سربراہان مملکت سے سائیڈ لائنز ملاقاتیں بھی شیڈولڈ ہیں۔ بیجنگ میں وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کی چینی وزیر خارجہ وانگ زی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دونوں وزراء خارجہ نے خطے میں امن و امان کی صورتحال اور کثیر الجہتی امور میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات، CPEC اور افغان امن عمل پر بھی بات چیت کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک چین دوستی ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ اس وقت دونوں ممالک خطے میں تعمیر و ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں وزیر اعظم کا دورہ چین انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کراچی میں معصوم نشفہ کے موت پر سندھ حکومت نے ایکشن لیا ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے دارالصحت اسپتال مختلف شعبے سیل کر دیے، جبکہ نئے مریضوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہسپتال میں داخل مریضوں کو 48 گھنٹے میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں معصوم نشفہ کی موت کے بعد سندھ حکومت نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن نے دارالصحت ہسپتال کراچی کے مختلف شعبے سیل کر دیے ہیں۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے رجب علی سے۔ رجب، بتائیے گا مریضوں کو شفٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے دارالصحت سے؟ جی، گزشتہ شب یہ بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے، جس میں سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی اور SP پولیس کی نگرانی میں جو ہے 2 شعبہ جات دارالصحت اسپتال کے بند کیے، جن میں ایک جنرل OPD اور دوسری ڈینٹل OPD۔ 2 شعبوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، چونکہ پورے اسپتال کو فوری طور پر بند کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ مریض چونکہ کافی تعداد میں مریض تھے، اور اس میں بعض مریض جو ہے وہ ایسے بھی ہیں جو کہ جو ہے وہ مصنوعی تنفس پر ہیں، یعنی ICU اور CCU میں بھی کافی سارے مریض ہیں، تو انہیں جو ہے وہ الٹیمیٹم دیا گیا 48 گھنٹوں میں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اپنے تمام مریض جو ہے وہ دوسرے اسپتالوں میں منتقل کر دیں اور نئے مریضوں کا داخلہ نہ کیا جائے۔ لہٰذا جو ہے 2 OPDs جو ہے وہ سیل کرتے ہوئے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا، اور 48 گھنٹوں کے بعد سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے ایک بڑے جو ہے وہ اقدام کا جو ہے وہ اندیشہ ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنی جو پریس ریلیز اعلامیہ تھا اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ گزشتہ دنوں جو ہے امن و امان کی صورتحال اس مقام پر بہتر نہیں تھی، اسپتال کے حوالے سے، تحقیقات کے حوالے سے۔ تو اب جب جو ہے وہ معاملات نمٹ چکے ہیں، تو اب جو ہے وہ تحقیقات کا دائرہ کار بھی جو ہے وہ وسیع کرتے ہوئے دیگر شعبہ جات سے بھی جو ہے وہ تحقیقات حاصل کی جائے گی، اور تمام تر مریضوں کو 48 گھنٹے کا اسپتال کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اپنے تمام مریض جو ہے وہ دیگر اسپتالوں میں منتقل کر دیں، جس کے بعد اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ جی، بہت بہت شکریہ رجب علی، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے گلاب ٹاؤن میں گھریلو تنازع پر شوہر نے بیوی اور ساس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ دوسری جانب میمن گوٹ میں شوہر نے چھریوں کے وار کر کے بیوی کو قتل اور بیٹی کو زخمی کر دیا۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ حاجی ابراہیم گوٹ میں گھریلو تنازع، شوہر نے ساس اور بیوی پہ فائرنگ کر دی۔ انیسہ اور شہر بانو اسپتال میں دم توڑ گئیں۔ پولیس کے مطابق ملزم مولا بخش نے 9mm پستول سے فائرنگ کی تھی۔ ملزم فائرنگ کرنے کے بعد جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ دوسری طرف میمن گوٹ میں بھی گھریلو جھگڑے پر شوہر نے بیوی اور بیٹی پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چھریوں کے وار سے بیوی لطیفہ جاں بحق اور بیٹی زبیدہ زخمی ہو گئی۔
SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम जुम्मन ने बीवी को मारने के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की थी। पुलिस ने मुलजिम जुम्मन को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। रजब अली, नियो न्यूज़, कराची। लाहौर के इलाके थाना शफीकाबाद की हदूद में घरेलू झगड़े पर कत्ल किया गया। मुलजिम ओवैस की अपने अहल खाना पर फायरिंग, 2 बहनें और बाप जांबाग भाई फरहान जख्मी हो गया। जख्मी को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात अता मोहम्मद से। लाहौर के इलाका थाना शफीकाबाद की हदूद में घरेलू झगड़े पर बाई ने 2 बहनों और वालिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। एक बाई जख्मी। मुलजिम ओवैस ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। जांबक होने वालों में बहनें सिदरा, मरियम और बाप रियाज शामिल। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP सिटी का कहना था फरहान के बयान के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। PFSA की टीम भी पहुंची हुई है, हमारी क्राइम सीन लैब भी पहुंची हुई है। वो हर लिहाज से इसकी जो भी अवेलेबल एविडेंस है उसको प्रिजर्व भी कर रही हैं, उसको कलेक्ट भी कर रही हैं। तो अभी एक इनका जो है फैमिली मेम्बर वो ज़ख्मी है, जो कि जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है, वो अभी ज़ेर इलाज है। अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई बयान दे सके, वरना शायद उससे जो है वो हमें कुछ ज़्यादा मुफीद मालूमात हासिल हो सकती हैं। मुलजिम ओवैस के भाई शहजाद का कहना था ओवैस अपनी बीवी को तलाक के बाद वापस घर लाना चाहता था। मुलजिम ने घर वालों पर इस बात पर फायरिंग की। ओवैस की शादी हुई है तो इनके अजीज हैं, उनमें कोई आपस में कोई नहीं उनकी जो बन सकी, लड़की चली गई है। तो ओवैस ये चाहता था कि मेरे वो आ जाए, तो बस उन जो लड़की के जो वालिदैन वो भी चाह रहे थे कि ना भेजना चाह रहे थे। तो रिश्तेदार भी होते हैं, इशू के भी जिद बन जाती है, या थोड़ा बहुत बंदा जो है ना अना का मसला बना लेता है। इसी वजह से ये चाह रहा था, तो मेरा ख्याल में यही गया। मोहल्लेदार फरीद ने बताया ओवैस का अपने घर वालों के साथ अपनी बीवी को वापस लाने पर अक्सर औकात झगड़ा रहता था। खानदान इंतहाई शरीफ था। वाक़या गैरत के नाम पर नहीं लग रहा। कैमरामैन शाहद अली के हमरा अता मोहम्मद, नियो न्यूज़, लाहौर। सोशल राउंड अप पर लाहौर के इलाके सब्जादार में बाप और सौतेली मां ने 4 साला बेटी को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल मुंतकिल करके वालिद को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज। सिंध में रेंजर्स की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई, 7 मुल्जिमान धर लिए गए। मुल्जिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फरोशी समेत दीगर जराइम में मुलव्विस हैं। रेंजर्स ने असलहा, मनशियात और मसरूका सामान भी बरामद कर लिया। अटक में कामरा रोड पर घर से बाप और बेटी की लाशें बरामद। मकतूलीन की शिनाख्त 18 साला रिता और मोहम्मद आसिम के नाम से हुई। थाना सिटी पुलिस ने हसन अब्दाल की इमानत उर्फ मानू को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में FIA की कार्रवाई, बैरून मुल्क भेजने का झांसा देकर शहरियों से पैसे बटोरने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोट अब्बास के नवाही गांव 282 HR में गंदम की फसल को आग लग गई। 10 एकड़ अराजी पर तैयार फसल जलकर खाकस्तर हो गई। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया। पर्चा इम्तहानी मराकज पर पहुंचने से पहले नकल माफिया तक पहुंच गया। पर्चा शुरू होने से आध घंटा पहले सोशल मीडिया की जीनत बना। हलशुदा जवाब भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें कि कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड का रियाजी का पर्चा भी आउट हो गया है। पर्चा इम्तहानी मराकज पर पहुंचने से पहले ही नकल माफिया तक पहुंच गया। पर्चा शुरू होने से आध घंटा पहले सोशल मीडिया की जीनत बना, जबकि हलशुदा जवाबात भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आपको अपडेट करें इस अफसोसनाक सूरत हाल से कि कराची में तालीम को मजाक बना दिया गया है। उधर मेहराबपुर में भी इंटरमीडिएट इम्तहानात में 11वीं जमात का पर्चा आउट हो गया। सखर बोर्ड के तहत 11वीं जमात का आज केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी हासिल करेंगे। आपको अपडेट करें कि मेहराबपुर में भी इंटरमीडिएट इम्तहानात में 11वीं जमात का पर्चा आउट हुआ है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन आजाद से। अबरार, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मामूल की तरह आज भी मेहराबपुर में 11वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर आउट हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का पेपर भी मामूल की तरह व्हाट्सएप ग्रुप्स में घूम रहा है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप के ग्रुप्स में घूमने वाला पेपर, उसके सवालों के जवाब भी मौजूद हैं। जी
بہت بہت شکریہ ابرار حسین، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مہراب میں سکھر بورڈ کا کیمسٹری کا پیپر آؤٹ ہوا ہے 11ویں جماعت کا، یہ پرچہ ہے اور انتہائی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سندھ کی وزارت تعلیم کے حکام اس صورتحال پر کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہنے پر عوام کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو صاحبہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، کسی نے شدید تنقید کی تو تحریک انصاف کے سپورٹرز کپتان کا دفاع کرتے نظر آئے۔ بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو صاحبہ کہنا موضوع بحث بن گیا۔ بلاول بھٹو صاحبہ ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا، کسی نے شدید تنقید کی تو تحریک انصاف کے سپورٹرز کپتان کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئے۔ صارفین نے سوال اٹھایا کہ کیا وزیر اعظم کی اب بھی زبان پھسل گئی یا عمران خان نے جان بوجھ کر یہ بات کہی۔ امریکی کامیڈین جیریمی مکیلن بھی پیچھے نہ رہے، ٹویٹ میں کہا کہ صاحبہ کا مطلب جنٹل مین ہوتا ہے اور یہ زبان صرف جاپان اور جرمنی کی سرحد پر بولی جاتی ہے۔ ایک صارف نے لکھا کہ جس طرح سے بلاول کو صاحبہ کہنا غلط ہے، اسی طرح سے مناز سعید کو بیبی کہا جانا بھی نامناسب ہے۔ نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب جتنے سوال پوچھے گی اتنے جواب دوں گا، اگر بٹھا لیا تو بیٹھ جاؤں گا۔ نجی ایئر لائن کے ریکارڈ کے حوالے سے صحافی کے سوال پر انہوں نے کہا کہ ان کا نجی ایئر لائن سے کوئی تعلق نہیں، ریکارڈ بھی طلب نہیں کیا گیا۔ صاحب بتائیے گا آج کتنے سوالوں کے جواب آپ سے لیے جائیں گے؟ 22 سوالوں کے جواب آپ پہلے دے چکے ہیں اور جتنے پوچھیں گے اتنے دے دیں گے۔ اچھا آج ایسا ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو جائے؟ بالکل ہو سکتا ہے، کچھ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایئر بلو کا ریکارڈ بھی آپ سے طلب کیا گیا تھا؟ نہیں، مجھ سے ایئر بلو کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ریکارڈ اگر مانگنے ہیں تو جو میرے پاس ہے۔ کیا جواب ٹھیک ہے جی، ہر قسم کا جواب میرے پاس موجود ہے، میں خود موجود ہوں یار، ہر جواب ہے۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ مزید خبریں شامل کریں گے۔ پنجاب میں پولیو کا خطرہ بدستور قائم ہے، رواں ماہ لیے جانے والے سیمپل میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ راولپنڈی، لاہور اور پشاور پولیو وائرس کے حوالے سے انتہائی خطرناک شہر قرار دیے گئے ہیں۔ لاہور کے علاوہ راولپنڈی، ڈیرہ غازی خان سمیت متعدد اضلاع میں بھی پولیو کے نمونے مثبت آئے ہیں۔ مزید بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور میاں نوید سے۔ نوید، صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے؟ جی ویسے بالکل، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ ریئیکشن دکھانا شروع کر دیا ہے پشاور کے واقعے کے بعد۔ دوسرا جو ہے کہ جو سیمپل لیے گئے تھے اپریل میں لاہور میں اور دیگر اضلاع میں، وہ بھی جو ہے وہ ایک بار پھر مثبت آئے ہیں۔ اس حوالے سے میں بتا دوں کہ پولیو مہمات بھی منائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر پیسہ بھی لگایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر جو ہے دوبارہ جب سیمپل جاتے ہیں تو پھر جو پازیٹیو آ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بتا دوں کہ لاہور میں جو ہے وہ سیمپل لیے گئے تھے، اس میں جو پازیٹیو آئے، اس کے بعد جو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے محکمہ پنجاب نے حکمت عملی بنانی شروع کر دی ہے اور دوبارہ نئے سرے سے پولیو مہم ایک تو جاری ہے، دوبارہ پھر نئے سرے سے مہم کرنے کے لیے جو ہے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ میاں نوید، اپڈیٹ کر رہے تھے لاہور سے۔ پولیو مہم کے خلاف سازش کی گئی، پشاور میں پولیو ڈرامے کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ اس رپورٹ میں کئی نجی اسکول مالکان، مقامی ناظمین، مقامی مشیران اور مذہبی رہنماؤں کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پشاور میں پولیو ویکسین سے متعلق افواہ پر معشوق خیل میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں جلایا گیا۔ بنیادی مرکز صحت راکھ اور کوڑے کا ڈھیر بن گیا۔ بی ایچ او کی تباہی سے علاقے کے غریب مریضوں کے لیے علاج معالجے کا ذریعہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ مزید دیکھیں گے شاہد خان کی اس رپورٹ میں۔ ٹوٹے پوٹے دروازے، راگ کا ڈھیر، بنی ادویات اور جلا ہوا سامان، یہ مناظر ہیں معشوق کے بنیادی مرکز صحت کے۔ 22 اپریل کو پولیو ویکسین سے متعلق افواہ پر مشتعل ہجوم نے بی ایچ او کو تباہ کر دیا۔ باہر نہیں جا سکتے، پشاور نہیں جا سکتے، تو اس غریب لوگ آتے تھے یہاں پر کے لیے، اور یہاں پر تو لوگ بہت متاثر ہے، لیکن آج کل تو لوگ اس نے توڑا ہے پھوڑا ہے۔ لیکن عینی شاہدین کے مطابق مظاہرین نے پولیو ویکسین سے متعلق افواہ کی تصدیق کیے بغیر بی ایچ او پر چڑھائی کر دی۔ ہجوم میں شامل افراد گراؤ جلاؤ کے علاوہ قیمتی سامان بھی لوٹ کر لے گئے۔ ادھر سامان پڑے تھے، بہت سامان تھے، وہ بیٹری وغیرہ سب کچھ لے کے گئے، لوگوں نے ساتھ لے کے گئے تھے۔ انسدادی پولیو مہم پر تحفظات اور سرکار سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن سنی سنائی بات پر قومی املاک کو تباہ کرنا اچھی روایت نہیں۔ کیمرہ مین عاقب جاوید کے ساتھ شاہد خان، نیوز پشاور۔ ادھر بلوچستان میں 3 روزہ پولیو مہم مکمل ہو گئی۔ اس مہم کے دوران 33 اضلاع میں 24 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا تھا۔ کوئٹہ سے مزید بتائیں گے آصف بلوچ۔
कोयटा समेत बलूचिस्तान के 33 अजला में इंसदादी पोलियो मुहिम के तीसरे रोज भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का सिलसिला जारी रहा। सह रोजा पोलियो मुहिम के दौरान 24 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। कोऑर्डिनेटर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बलूचिस्तान राशिद रजाक के मुताबिक मुहिम में 10,000 टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि इस मुहिम के दौरान 950 से ज्यादा फिक्स साइट्स और ट्रांजिट पॉइंट्स कायम किए गए थे। इंसदादी पोलियो मुहिम के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। पर बस को मोड़ने के लिए सड़क की चौड़ाई कम पड़ गई है। मंसूबा तकमील तक पहुंचने लगा तो इंजीनियर को सड़क की चौड़ाई कम होने का एहसास हुआ। बीआरटी रोड को बड़ा करने के लिए पिलर्स को मजीद तौसी दी जाने लगी है। मजीद जानेंगे सदर में मौजूद अपनी नुमाइंदा नायाब रिजवान से। नायाब, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, गलती नहीं बल्कि गलतियों का मजमू आप कह सकते हैं पेशावर की बीआरटी को, जिसे तकरीबन 2 साल होने को है, लेकिन पेशावर बीआरटी का जो रूट है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। इसमें सैकड़ों के करीब गलतियां निकल आई हैं, बनाए जाते हैं पिलर्स, बार बार गिराए जाते हैं। इस वक्त मैं सदर में मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाला पिलर है जो तकमील के मराहिल में है अभी, और इसके साथ साथ 2 और पिलर्स है। यहाँ पर ये जो रूट है, यहाँ पर पहले इनको समझ नहीं आ रही थी या क्या बात थी कि ये लोग बना रहे थे रूट, लेकिन जब ट्राई कर रहे थे, यहाँ से बस गुजार रहे थे, तब बस जो थी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर नहीं गुजर सकती थी, नहीं मुड़ सकती थी, जिसके बायस इन लोगों ने फिर यहाँ पर 3 पिलर जो है उसमें इजाफा कर लिया। वो भी अभी तकमील के मराहिल में है, उस पर काम जारी है। इससे ना सिर्फ शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है, बल्कि ट्रैफिक जो है वो भी घंटों यहाँ पर खड़ी रहती है, जिससे ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि वो इस इंतजार में है कि कब टाइम आएगा और ये बीआरटी बहुत बहुत शुक्रिया नायाब रिजवान आपका। बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से निशान इम्तियाज मिलने पर मारूफ समाजी कारकुन शुएब सुल्तान खान के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में BRSP के मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खुसूसी अफराद और मदारिस के तलबा ने भी शिरकत की। तफसीलात कोयटा से आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। मारूफ समाजी कारकुन शुएब सुल्तान खान को निशान इम्तियाज मिलने पर तकरीब का इनेकाद बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में बलूचिस्तान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले खुसूसी अफराद ने भी शिरकत की। जिंदगी को रवां दवा रखने के लिए साइकिल और दीगर अशिया मिलने पर वो बहुत खुश हैं। इस साइकिल से मेरे ये पैदा हो गया कि बहुत नरम है, बहुत आसान है, ये बहुत इसमें सीट वगैरह भी है। BRSP बलूचिस्तान के सरबराह नादिर गुल बड़ेज का कहना था, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 10 अजला में 1300 अफराद को ऐसी अशिया फराम की गई। 10 अजला के अंदर सर्वे किया और मुझे बड़ी खुशी है कि इन 10 अजला के अंदर खास तौर पे वो खुसूसी लोग कि जिनके बाजू कटे हुए हैं या पाँव कटे हुए हैं, उनको हम 100% ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इस मौके पर पाकिस्तान के दही इलाकों में शुएब सुल्तान खान की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया और इन्हें तहाइफ से भी नवाजा गया। कैमरामैन इब्राहिम बैरानी के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। लाहौर में झुग्गियों के मकीन बच्चों को डबल डेकर बस में लाहौर के तारीखी मकामात की सैर करवाई गई, जिसमें गरीब और बेसहारा बच्चों के हमरा साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी सफर किया। रिपोर्ट करेंगी आयशा अता। लाहौर के खूबसूरत मुकामात पर लोगों को सैर कराती ये है डबल डेकर बस। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से शहर के झुग्गी मकीन और बेसहारा बच्चों को तारीखी मुकामात की सैर कराई गई। बच्चों का ये मुनफरिद सफर कदाफी स्टेडियम से शुरू होकर मीनार पाकिस्तान से होता हुआ ग्रेटर इकबाल पार्क में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां बच्चों की खुशी दीदनी थी। डबल बस में बैठ के आए हैं, मीनार पाकिस्तान में बहुत मजा आ रहा है। हम डबल बस में बैठ के आए हैं, हम अब मीनार पाकिस्तान में बड़ा मजा आ रहा है। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक ने भी बच्चों के हमरा डबल डेकर बस के जरिए सूबाई दारुल हुकूमत के तफरीही मुकामात की सैर की और बच्चों में घुल मिल गए। कहते हैं डबल डेकर बसों पर सैर अशराफिया का ही नहीं, यतीम और गरीब बच्चों का भी हक है। इनके लिए भी कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनकी लुक आफ्टर कर सके
और जैसे दूसरे मुल्कों में आपने देखा कि हर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, यहाँ भी हर बच्चा स्कूल में पढ़ना चाहिए। बच्चों ने बस की छत पर बैठकर जहां तारीखी इमारतों और लाहौर कैनाल के दिलकश नज़ारे देखे, वहीं सफर के दौरान डांस और खूबसूरत आवाज में गाने गाकर सफर को यादगार बनाते रहे। इस तरह के टूर्स न सिर्फ बच्चों को तफरीह के अच्छे मौके फ्राहम करते हैं बल्कि इनकी मालूमात में भी इजाफा करते हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ आयशा अता, न्यू न्यूज़ लाहौर। आज भी आंधी और गर्दालूद हवाओं की लपेट में है। कराची समेत सिंध भर में गर्मी की लहर जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज फिर बादल बरसेंगे। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बादल बरसते रहे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फ से मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आंधी और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। कराची में आज मौसम गर्म रहेगा। सिंध में गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बारिश का कोई इम्कान नहीं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके आंधी और गर्द आलूद हवाओं की लपेट में। कोयटा में मिट्टी के तूफान और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच से मौसम के बारे में बात करते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर किया है, जबकि सूबे के किसी भी अजला में आज बारिश का इम्कान नहीं है। मौसम इसी तरह शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गुज़िश्ता 2 रोज़ से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में गर्द आलूद और मिट्टी के तूफ़ान की लपेट में हैं, जिसके बायस गर्द आलूद हवाएँ चलने के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया है। कोयटा और गुर्दनवा में भी गुज़िश्ता रोज़ से तेज़ आंधी और मिट्टी का तूफ़ान है। शहरियों को डॉक्टरों ने इस मौसम में जो है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। खुसूसन सांस और नज़ला ज़ुकाम और दीगर किस्म की बीमारियाँ गर्द आलूद हवा चलने के बायस जो शहरी है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दीगर इलाकों की अगर बात की जाए, कलात और गुर्दनवा में बारिश भी हुई, 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कोयटा में अगर मौसम की बात की जाए, गर्द आलूद हवाओं की लपेट में है। दर्जा हरारत इस वक्त जो शहर का है कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के अक्सर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और ये गर्द आलूद हवाएं जो है चलने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जी। उधर जनूबी अफ्रीका में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 60 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सैलाब के बाद सड़कें टूट फूट गईं, जबकि लैंड स्लाइडिंग की वजह से हाईवे मुतअद्दिद मकामात से बंद हो गई। वज़ीर आज़म सिरिल रामाफोसा ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इमदादी टीम्स की मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सह मुल्की कॉन्फ्रेंस आज मॉस्को में होगी। कॉन्फ्रेंस में रूस, चीन और अमेरिका के नुमाइंदे शरीक होंगे। नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्म खलीलजाद का कहना है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम मुतहारिब गिरोहों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और आलमी हिमायत के लिए कोशिशें जारी हैं। इजलास अफगानिस्तान के मामले पर मुज़ाकरात का कोई नया फोरम नहीं, बल्कि ये अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पहले से जारी आलमी ताकतों की कोशिशों के फ्रेमवर्क के तहत मुनक्किद किया जा रहा है। और यहाँ बुलेटिन में थीसिस पर मुश्तमिल थी। तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। इस नुमाइश का अहवाल आसिफ बलोच से। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के फाइनल ईयर के तलबा और तालिबात के फनपारों की नुमाइश का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने अपनी सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। तुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा शाहीना ने ख़ानदान में ख़वातीन रिश्तेदारों की अहमियत को उजागर किया। 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। मेरी फैमिली की बहुत सपोर्ट थी, तभी तो मैं यहाँ इस मकाम पे पहुँची हूँ। तो 5 कहते हैं ना, उंगलियों की कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये जब 5 उंगलियाँ एक साथ हो जाए, एक मुश्त बनती है, एक ताकत बनती है। इसी तरह मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर्स मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है। नुमाइश में कैंसर से हलाकत और मुआशरे में डिप्रेशन के बढ़ते हुए असरात को भी नुमाया तौर पर पेश किया गया। जब से मैंने इन टॉपिक सेलेक्ट किया है और लोगों से बात करना शुरू किया, हर
किसी से पूछता था, हर कोई कहता है मेरे साथ भी इस तरह होता है, मैं भी बेचैन हूँ, बहुत डिप्रेशन हूँ। यानी लोगों में मुझे ऐसा लग रहा था सारे लोग भी इसी तरह आजकल इस माहौल में, माशरे में, खौफ हिरास में। तलबा और तालिबात ने नुमाइश में गहरी दिलचस्पी ली। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर ने ट्वीट्स रिपोर्ट करने का ऑप्शन मुतारिफ करवा दिया है। ट्वीट्स रिपोर्ट करने का ऑप्शन सबसे पहले भारत और यूरोप में मुतारिफ करवाया जा रहा है। ऑप्शन मुतारिफ करवाए जाने के बाद ट्विटर की सर्विसेज को इंतखाबात में गड़बड़ या मदाखलत करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वोट रजिस्ट्रेशन या इंतखाबी अमल को मुतासर करना कंपनी की बुनियादी अक़दार के बरक्स है। ऑप्शन को इसी साल पूरी दुनिया में मुतारिफ करवा दिया जाएगा। ऑप्शन के इस्तेमाल से ट्वीट को फौरी तौर पर डिलीट किया जा सकेगा। वियतनाम में ऑस्ट्रेलियाई फौज को मकामी बागियों ने घेर लिया। एक्शन और